السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد ذاکر حسین۔ مشن اکیڈمی کی جانب سے آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ ساتھیوں، آج ہمارا یہ 11واں کلاس ہے اور اس کلاس میں ہم چیپٹر نمبر 4 کا تیسرا کلاس لے رہے ہیں، زبان کی مہارت جس کا نام ہے۔ اس میں ہم نے 4 مہارتوں کو دیکھا، جس میں کیا کیا دیکھا ہم نے؟ LSRW، اس کا کیا تھا؟ شارٹ فارم تھا LSRW، جس میں سے ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ لسننگ کیا ہے اور اس کے بارے میں تمام معلومات ہم نے حاصل کی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا اسپیکنگ کے بارے میں کہ بولنا کیا ہے، کیسے ہے اور اس کو کیسے پڑھایا جائے گا، اس کی تدریس کیا ہے، اس کے پڑھانے کا طریقہ کیا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم نے دیکھا۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ کیا ہے؟ ریڈنگ کے بارے میں۔ اس کے بعد اگلے کلاس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ رائٹنگ کے بارے میں۔ اور ان چاروں مہارت کو ہم لوگ اچھے سے پڑھیں گے تاکہ ایک بھی سوال ہمارا ایگزام میں نہیں چھوٹے۔ اور یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، بہت ہی اہم چیپٹر ہے، بہت آسان چیپٹر ہے لیکن بہت اہم ہے۔ اس سے سوالات ہر سال پوچھتا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کے کلاس میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں پڑھنے کے بارے میں، جو ہمارا تیسری مہارت ہے اس کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ساتھیوں، اس میں ہم جو پڑھنے والے ہیں، سب سے پہلے پڑھیں گے کہ پڑھنا کیا ہے، جسے خواندگی بھی کہتے ہیں اور مطالعہ بھی کہتے ہیں، اس کو ہم سمجھیں گے۔ اس کے بعد مطالعہ کے یعنی پڑھنے کے کیا کیا اجزاء ہیں، اس کے بارے میں ہم سمجھیں گے کہ اس میں اجزاء کا مطلب بہت ساری چیز ہوتی ہے، اس میں پازیٹیو بھی آتا ہے، نیگیٹو بھی آتا ہے، اس کے فوائد بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان تمام چیزوں کو ہم لوگ پڑھیں گے۔ مطالعہ کی کتنی قسمیں ہیں اس کو جانیں گے، پھر مطالعہ کی تدریس کیسے کرتے ہیں، یعنی بچوں کو پڑھنا کیسے سکھائیں گے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ پھر مطالعہ کو فروغ دینے کے کیا کیا طریقے ہیں، یعنی بچہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی عادت کیسے ڈالے، ہم کیسے اس کو بتائیں گے، کیا کیا طریقے ہیں جس سے بچے پڑھنے کی عادت ڈال سکے، مطالعہ کی عادت ڈال سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم لوگ۔ سب سے پہلے دیکھیے کیا ہے، آپ کو معلوم ہے LSRW یہ کیا ہے؟ ریڈنگ کیا ہے؟ تیسرا ہے نا؟ تیسری مہارت کیا ہے؟ ریڈنگ ہے۔ پڑھنا تیسری اہم بنیادی مہارت ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی بنیادی مہارت کون تھی؟ سننا۔ کیا تھا؟ سننا یعنی لسننگ۔ دوسرا کیا تھا؟ بولنا یعنی زبانی اظہار، ٹھیک ہے؟ تیسرا کیا ہے؟ پڑھنا یعنی خواندگی اور مطالعہ اسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تینوں اب تک ہم نے کتنے پڑھے؟ 3 پڑھے۔ پڑھنا تیسری اہم بنیادی مہارت ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ تحریری شکل میں ریسیپٹیو اسکلز۔ دیکھیے اسکلز کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ اسکلز کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ 2 طرح کے۔ ہم جو پڑھ چکے ہیں اس کا بھی ریویژن کرتے ہوئے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلا کیا؟ ایک تو ہوتا ہے ریسیپٹیو اسکلز، ریسیپٹیو، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ پہلا ریسیپٹیو اور دوسرا کریٹیو، ہے نا؟ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ کریٹیو ہوتا ہے، کریٹیو اسکلز۔ تو یہ 2 اسکلز ہیں۔ ریسیپٹیو اسکلز کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تحصیلی مہارت کہتے ہیں۔ ریسیپٹیو اسکلز کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تحصیلی مہارت کہتے ہیں، تحصیلی مہارت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تحصیلی مہارت کہتے ہیں۔ جبکہ پروڈکٹیو اسکلز کو کیا کہتے ہیں؟ تعمیری مہارت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پروڈکٹیو یا پھر کریٹیو۔ پروڈکٹیو بھی وہی ہے اور کریٹیو بھی وہی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے ریسیپٹیو، دوسرا ہوتا ہے پروڈکٹیو یا کریٹیو، ٹھیک ہے؟ کریٹیو بھی کہہ سکتے ہیں، پروڈکٹیو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پروڈکٹیو کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ تعمیری مہارت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تعمیری مہارت کہتے ہیں۔ جبکہ کریٹیو کو کیا کہتے ہیں؟ تخلیقی مہارت کہتے ہیں، تخلیقی مہارت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن دونوں ہیں ایک ہی چیز۔ تعمیری مہارت کہیے یا تخلیقی مہارت کہیے، ایک ہی چیز ہے، یعنی کہ کریٹیو یا پروڈکٹیو، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا کیا ہے؟ ریسیپٹیو، جس کو تحصیلی مہارت کہتے ہیں۔ تو پڑھنا ہمارا کیا ہے؟ ایک ریسیپٹیو اسکلز ہے، یعنی کہ تحصیلی مہارت ہے، ٹھیک ہے؟ 2 مہارت ہمارا، جس میں سے پہلا اور تیسرا کیا ہے؟ ریسیپٹیو ہے یعنی تحصیلی ہے، جبکہ دوسرا اور چوتھا کیا ہے؟ تخلیقی یا تعمیری ہے یعنی پروڈکٹیو ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حصول علم کا یہ حصول علم کا بے حد اہم ذریعہ ہے۔ کیا؟
पढ़ना, यानी इल्म हासिल करने का बहुत ही अहम जरिया क्या है? पढ़ना। पढ़ना वो महारत है जिसके जरिए हम लिखी हुई अलामत को पहचानते हैं, ठीक है, जिसके जरिए हम लिखी हुई अलामत को पहचानते हैं। अब देखिए, सुन करके हम जो लिखी हुई चीज है उसको हम क्या करेंगे, जब तक कोई पढ़ेगा नहीं या मैं खुद नहीं पढ़ूंगा तब तक इसको हम नहीं पहचान सकते हैं। जब सामने वाला कुछ बोल रहा है इसका मतलब वो पढ़ नहीं रहा है, अपनी मर्जी से कुछ बोल रहा है। लेकिन पढ़ने के लिए क्या है? इबारत होना जरूरी है, अलामत होना जरूरी है। ये चीज यहाँ कहा गया है कि जिस अलामत को पहचानते हैं, पढ़ने के लिए अलामत होना जरूरी है। उनको समझते हैं, उससे माना अखज़ करते हैं। किससे? तहरीरी शक्ल से। पढ़ने के अमल में लिखे हुए अल्फाज की पहचान और उसे माना अखज़ करना शामिल है। पढ़ने की महारत की नशोनुमा बच्चे की तख्लीकी और जहनी नशोनुमा के लिए निहायत ज़रूरी है। देखिए, तख्लीकी क्या, ये है तहसीली महारत, लेकिन पढ़ना जब बच्चों को आ जाएगा तो पढ़ना क्या है? पढ़ने से ही तख्लीकी महारत यानी कि सोचने की जो उसका दर है वो उसमें फ़रोग़ पाता है, ठीक है। उसकी ज़हन का जो है नशोनुमा होता है, कब? पढ़ने से। उसके बाद उर्दू ज़बान के असातिज़ा को ये बात ज़हन नशी होना चाहिए कि वो एक मखलूत ज़बान की तदरीस करने जा रहे हैं। इसके लिए उन्हें हुर्फ़ तहज्जुद से लेकर इमला, तलफ़्फ़ुज़, अल्फाज और जुमले की साख्त का पूरा इल्म होना चाहिए। यानी इसमें क्या है कि एक उस्ताद जिस यहाँ उर्दू की बात कर रहा है, लेकिन किसी भी ज़बान को जो उस्ताद पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ाने से पहले ये मालूम होना चाहिए कि वो खुद जानते हैं या नहीं। इसलिए उनका उस्ताद का तलफ़्फ़ुज़ सही होना, उनके अल्फाज जुमले की साख्त सही होना, यानी जुमला सही तरीके से बनाना, फिर क़वाइद का इल्म होना, ये ज़रूरी है, ठीक है। तब वो बेहतर तदरीस कर पाएंगे। चलिए, तो यहाँ तक हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। पढ़ने के 3 अज्जा हैं, यानी पढ़ने इसमें क्या क्या छुपा हुआ है उस चीज को देखिए। पढ़ने के हिस्से क्या क्या हैं? छुपी हुई अलामत को पहचानना, यानी कि अगर आपको जो स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है, जो लिखा हुआ है, ये क्या है? ये एक अलामत है। आपने पढ़ना सीखा तब तो इसको पढ़ना समझ, इस अलामत को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो यही चीज कहा गया है, छुपी हुई अलामत को पहचानना क्या है? ये पढ़ने की अज्जा है। आवाज पैदा करना, अलामत के जरिए आवाज पैदा करना क्या है? पढ़ने का जुज है। ख्यालात को समझना, ख्यालात को समझना का मतलब यह है कि जो चीज इसमें लिखी हुई है तहरीरी शक्ल में उसको समझना। तो ये सब क्या है? अज्जा है। कहने का ये मतलब है कि पढ़ने के बाद हमें क्या क्या मिलेगा। अगर हम पढ़ना सीख जाते हैं या बच्चों को पढ़ना सिखा देते हैं तो उसे क्या क्या मिलने वाला है। तो ये चीज इसमें कहा गया है कि वो छुपी हुई अलामत को पहचान लेगा, वो उस अलामत के जरिए क्या करेगा? वो आवाज पैदा कर लेगा। उसके बाद जो लिखा हुआ है उसके बारे में वो सोच पाएगा, ख्यालात का इजहार कर पाएगा। ये चीज कहा गया। पढ़ना यानी रीडिंग के लिए माहिर तालीम ने क्या क्या है? 5 मरहले, 5Rs, ठीक है, मतलब 5R है असल में, ये 5R। ये 5R का मतलब है वो लफ्ज जो R से ही शुरू हो और वो 5 लफ्ज है, ठीक है। तो 5 मरहले में इन्होंने बांटा है। किसने? माहिर तालीम ने। कौन कौन है? सबसे पहला है इंदराज, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रजिस्ट्रेशन कहते हैं। तो पहला R हो गया रजिस्ट्रेशन, पहला R हो गया, पहला रजिस्ट्रेशन है। दूसरा क्या है? शनाख्त, जिसको रिकॉग्निशन कहते हैं। ये क्या हो गया? दूसरा हो गया। उसके बाद तीसरा क्या है? कायम करना, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिटेंशन कहते हैं। ये तीसरा हो गया। चौथा क्या है? सलाहियत, चौथा क्या है? बाजियाफ्त, जिसे रिकॉल कहते हैं। तो ये क्या हो गया? 4 हो गया। और आखिर में क्या है? 5वां याददाश्त, जिसे रिमेंबर कहते हैं। और ये 5वां। तो इसीलिए कहा गया है कि माहिर तालीम ने पढ़ना को 5 मरहले में बांटा है, जिसे 5R के नाम से जाना जाता है। 5R के नाम से जाना जाता है, यानी वो हुरूफ जो R से शुरू हो और ऐसे 5 हुरूफ हैं, ठीक है। जिसमें से पहला क्या है? इंदराज है। जिस हर्फ या लफ्ज को बच्चा देखता है उसकी एक तस्वीर उसके जहन में बन जाती है। इस अमल को इंदराज कहते हैं। यानी कि आपको जो स्क्रीन पर जो लफ्ज दिखाई दे रहा है, बच्चा जब शुरू में ही देखता है, अलिफ से लेकर ये तक या किसी भी जबान में ए से लेकर के जेड तक, क से लेकर यहाँ तक जो भी देखता है, तो उसकी एक तस्वीर बच्चे के जहन में बन जाती है और इसी को कहते हैं इंदराज। यानी कि वो एक तरह से क्या है? इनपुट है,
ठीक है। कंप्यूटर के लैंग्वेज में आप जानते होंगे इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। तो ये क्या है, सबसे पहला क्या है, इनपुट है, ठीक है। दूसरा क्या है, शनाख्त। जिन हुरूफ और अल्फाज का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यानी इनपुट जो हम डाल चुके हैं उनके सामने आने या सुनाई देने पर जहन में उसकी तस्वीर उभरकर ना, शनाख्त का उभरना, जहन में उसकी तस्वीर उभरना शनाख्त का अमल कहलाता है। यह पढ़ने के जानिब दूसरा कदम होता है, ठीक है। पहला कदम क्या है कि बच्चा जब किसी तस्वीर को देखता है, किसी हर्फ को देखता है, तो उसकी तस्वीर क्या है, जहन में बैठ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरी मर्तबा क्या होता है, जब उस तस्वीर के बारे में कोई सामने वाला बात कर रहा है कि क अगर बोल रहा है या अलिफ ही बोल रहा है, कोई भी लफ्ज जो उसके जहन में पहले से है, तो उस बच्चे के सामने वो तस्वीर आ जाएगी, ठीक है। वो तस्वीर आ जाएगी कि अच्छा ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, दूसरा मरहला है। क्या है ये, दूसरा मरहला है। ये पढ़ने के जानिब क्या है, दूसरा कदम है। तीसरा क्या है, कायम रखना यानी रिटेंशन। जो अल्फाज जहन नशीन हो गए हैं और जिनकी शनाख्त होने लगी है, उनको जहन में बनाए रखने की सलाहियत रिटेंशन कहलाती है, ठीक है। तो पहला क्या हुआ कि उसने देखा तो वो चीज उसके जहन में आ गई, ठीक है, उसकी तस्वीर जहन में बन गई। दूसरा क्या है, उस हर्फ के बारे में अगर कहीं पर सुनता है या कोई आवाज उसके कान में जाती है, तो वो फौरन उसको रिकॉल कर पाता है, वो उसको याद कर पाता है कि अच्छा इसकी तस्वीर इस तरह की है। तीसरी चीज क्या है, उसको वो हमेशा के लिए याद रख पाता है, कायम रख पाता है, उसको रिटेंशन कहते हैं। और फिर ये क्या है, तीसरा कदम है। चौथा क्या है, बाज़याफ्त यानी रिकॉल। रिकॉल का मतलब क्या है, फिर से याद करना। वक्त ज़रूरत अल्फाज के इस्तेमाल करने की सलाहियत क्या कहलाता है, बाज़याफ्त कहलाता है, यानी कि उसको फिर से याद करना। अगर किसी मौका महल के एतबार से कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करना है तो उसको क्या करना, रिकॉल करना, उसको याद करना, ठीक है। तो ये चौथा कदम है, ठीक है। पढ़ने का जो आखिरी कदम है, पांचवा कदम है, उसको क्या कहते हैं, यानी 5R का जो पांचवा R है वो कौन सा है, वो है रिमेंबर, याददाश्त। जो पढ़ने का अमल को, जिस पढ़ने के अमल को सीखा गया है उसे लंबे वक्त तक याद रखना। रिकॉल का मतलब क्या होता है, भूल गया और फिर मौका के एतबार से उसको याद किया गया। लेकिन याददाश्त का मतलब क्या है, वो हमेशा याद रखने वाली चीज, ठीक है, बीच में भूलना नहीं चाहिए। तो इसको रिमेंबर कहते हैं। और इसका क्या है, इसका इतलाक लंबे वक्त तक, लंबे समय तक क्या है, इसका इतलाक मुमकिन है, यानी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो 5R आपने देख लिया कि 5R का मतलब क्या है, 5R। और 5R का किसे कहते हैं, यानी वो लफ्ज जिसमें जो पांचों का पांचों क्या है, R से है, ठीक है। तो उसमें आपने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले आपने देखा रजिस्ट्रेशन। मैं आपको यहां पर बता देता हूं, सबसे पहले क्या देखा, रजिस्ट्रेशन। आप इसको याद रखिएगा, 5R का मतलब सबसे पहले रजिस्ट्रेशन है। दूसरा क्या है, दूसरा है रिकॉग्निशन, है ना, यही था रिकॉग्निशन। तीसरा था रिटेंशन, क्या था, तीसरा रिटेंशन। चौथा क्या था, रिटेंशन के बाद था रिकॉल करना। और पांचवा क्या था, रिमेंबर, ठीक है। तो ये था 5R, जिसको क्या कहते हैं, ये पांच क्या है, सलाहियतें हैं, और ये पढ़ने के 5 सलाहियतें, इसको कहते हैं 5R। तो आप इस पांचों को याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन, रिकॉग्निशन, रिटेंशन, रिकॉल और रिमेंबर, ठीक है। अगर आप इसको उर्दू में जानना चाहते हैं तो अभी आपको बता दिया गया है, फिर भी बता दूं कि रजिस्ट्रेशन को क्या बोलते हैं, इंदराज बोलते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन को क्या बोलते हैं, इंदराज बोलते हैं। रिकॉग्निशन को शनाख्त बोलते हैं, रिकॉग्निशन को क्या बोलते हैं, शनाख्त बोलते हैं। फिर रिटेंशन को कायम रखना, कायम रखना, रिटेंशन को क्या बोलते हैं, कायम रखना। रिकॉल को बोलते हैं बाजियाफ्त, क्या बोलते हैं, बाजियाफ्त। और फिर पांचवा क्या है, रिमेंबर का मतलब होता है याददाश्त। रिमेंबर किसे कहते हैं, याददाश्त को। तो एक छोटा सा नोट बना लीजिएगा एक पर्ची पे और इसको 5R करके याद कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन, रिकॉग्निशन, रिटेंशन, रिकॉल, रिमेंबर, इंदराज, शनाख्त, कायम रखना, बाजियाफ्त और याददाश्त। ये बहुत ही आसान है, आसान लफ्जों में याद रखिएगा, बहुत ही काम की चीज है, ठीक है।
तो 2 टॉपिक आज हमने अभी तक पढ़ लिया है। अगर इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो आप हमें बताइए ताकि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं। चलिए, ये चीज हम लोगों ने देख लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, मुताला की किस्में। मुताला की कितनी किस्में हैं उन सबको हम देखेंगे। अभी मुताला की कितनी किस्में हैं उन चीज़ों को देखेंगे। तो मुताला की 4 किस्में हैं, ठीक है। कितनी किस्में हैं मैं आपको बता देता हूँ। मुताला की 4 किस्में हैं। 4 में अब हम बारी बारी से देखेंगे कि 4 कौन कौन सी है। सबसे पहला क्या है, स्कीमिंग, सरसरी मुताला इसको कहते हैं। यानी पढ़ने का जो तरीका है वो किस किस तरह से पढ़ा जाता है उसको हम देख सकते हैं। उसी को कहते हैं पढ़ने का क्या किस्म कहते हैं, या मुताला की किस्म कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पढ़ने की किस्म या मुताला की किस्म। स्कीमिंग क्या है, एक सरसरी मुताला है। जिस तरह से अभी मैं आपको बताता हूँ, स्कीमिंग एक सरसरी मुताला है जिसका मकसद मवाद या इक़्तिबास के मरकज़ी ख्याल से कारी को फौरी तौर पर या सरसरी तौर पर मुतारिफ कराना होता है। यह इक़्तिबास के आम माना या मौजू को समझने में मुआविन होता है। रीडर को यह आइडिया मिल जाता है कि जो इक़्तिबास या मजमून उसने पढ़ा है उसका ताल्लुक किससे है, इसमें क्या मौजू लिया गया है, मुसन्निफ का मकसद क्या है, ठीक है। तो ये चीज हो गया सरसरी मुताला, एक मरतबा हमने देख लिया। या इससे भी आसान में ये होता है कि अगर आपको फहरिस्त दिया हुआ है तो आप क्या करते हैं, हर फहरिस्त को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि अच्छा इसमें क्या है, टॉपिक क्या है, और फिर उसको आगे बढ़ जाते हैं देख करके। जो काम की चीजें हैं आपको आपके लिए वो पढ़ते हैं, फिर बाकी छोड़ करके निकल जाते हैं। खासतौर से ये न्यूज़पेपर में होता है, ठीक है, इस तरह का चीज। तो आप सरसरी मुताला समझ गए, बहुत ही आसान है। उसके बाद दूसरी सलाहियत क्या है, यानी दूसरी किस्म क्या है, वो है स्कैनिंग करना। स्कैनिंग करना क्या होता है, स्कैनिंग का ताल्लुक मतन के किसी खास मालूमात की खोज के मकसद से सरसरी मुताला करने से। इसमें रीडर सफ़हात पर ऊपर से नीचे तेजी से नजरें दौड़ाकर अपने मकसद की चीजें तलाश करने की कोशिश करता है, ठीक है। स्कैनिंग का अक्सर इस्तेमाल क़ारीन सवालात के जवाब मतन से खोजने के लिए करते हैं। इसके अलावा मतन में कोई नाम, तारीख, निशान, फ़िक्रा या फार्मूला तलाश करना भी इसकी स्कैनिंग कहलाता है। अब देखिए, मैं आपको एक सवाल दे देता हूँ कि अभी तक आपने जो पढ़ा है उसके एतबार से कि ये बताइए कि पढ़ना क्या है। मैं अभी सवाल लिख देता हूँ, पढ़ना कौन सी महारत है, कौन सी महारत है। तो अब क्या करेंगे, आप यहां से देखना शुरू करेंगे या फिर शुरू से देखना शुरू करेंगे कि कौन सी महारत है, ठीक है। ऐसे करना, ऐसे मतलब पूरा पेज पलटाना किताब की शुरू करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि ये क्या है, रिसेप्टिव स्किल्स है, जिसको क्या बोलते हैं, तहसीली महारत कहते हैं। तो आपके सवाल का जवाब मिल गया, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। तो यही होता है स्कैनिंग, ठीक है। मतलब जो चीज आपको चाहिए बस उसको एक नजर में खोजते हुए आगे बढ़ जाएंगे, हो गया। ये अक्सर क्या होता है, सवाल का जवाब ढूंढने के लिए या किसी खास पॉइंट को जो आपने पढ़ा था या आपको अभी जरूरत है, पहले पढ़ा था और जरूरत है उसे देखने की, तो आप क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। तो इसे ही कहते हैं स्कैनिंग, ठीक है। तीसरा क्या है, रीडिंग। तीसरा क्या है, रीडिंग। तीसरा क्या है, रीडिंग नहीं है बल्कि इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंशन है। इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंशन है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, अमीक और वसीअ मुताला। इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंशन, इसको क्या बोलते हैं, अमीक और वसीअ मुताला। अमीक मुताला का ताल्लुक मतन की गहराई के साथ मुताला करने से है। यह एक अहम महारत है जिसमें तबाहशुदा मवाद पर लफ्ज दर लफ्ज गौर करते हुए मुताला किया जाता है। इसका मकसद मौजू की तफहीम के साथ ज़बान की बारीकियों और तरकीब का जायजा लेना भी होता है। जिस तरह से आपको पहले मुताला के बारे में बताया गया कि एक होता है सरसरी मुताला, दूसरा क्या होता है, स्कैनिंग। सरसरी मुताला में क्या होता है कि हम ऊपर से नीचे तक सिर्फ एक नज़र पढ़ते हुए चले जाते हैं। दूसरा होता है स्कैनिंग। स्कैनिंग में क्या करते हैं, हम ज़रूरत की चीज़ों को खोजते हैं। वो भी एक सरसरी मुताले की ही किस्म है, लेकिन उसमें हम किसी चीज़ की तलाश में होते हैं, ठीक है। लेकिन अमीक और वसी मुताला का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें, जो इबारत आपके सामने है, उसको आप हर लफ्ज़ को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके मतलब को समझते हैं, उस पर आप
खोज करने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या चीज कहा गया है, ठीक है, एक एक लफ्ज को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है अमीक और वसी मुताला, ठीक है। तो तीनों में फर्क समझ में आ गया होगा। चौथा होता है बुलंद खानी और खामोश मुताला। ये दोनों एक दूसरे के बरअक्स है, यानी मुतजाद है। बुलंद खानी का मतलब होता है जोर से पढ़ना, जबकि खामोश मुताला क्या होता है, धीरे पढ़ना। तो मतन को यानी जो इबारत लिखी हुई है उसको बुलंद आवाज के साथ पढ़ना क्या है, बुलंद खानी कहलाता है। और बुलंद खानी की इब्तिदा जमातों में खुसूसी अहमियत है, क्योंकि इसके जरिए मुअल्लिम को ये पता चल जाता है कि माना और तलफ़्फ़ुज़ के लिहाज से तालिब इल्म कितना दुरुस्त है। इसलिए दर्जे जमात में जब बच्चों को क्या करते हैं, जब बच्चों को पढ़ाते हैं, ख़ास तौर से जब ज़बान की क्लास में बच्चे को हम पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, उसे बुलंद खानी करवाते हैं, ताकि उसकी गलतियों को, कि जिस लफ्ज़ का माना वो नहीं समझ पा रहा है या किसी लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ वो नहीं सही से अदा नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम सही कर सकें या मुअल्लिम सही कर सके। इसलिए बच्चों को बुलंद खानी के साथ ही पढ़वाना चाहिए। मुअल्लिम के ज़रिए की गई बुलंद खानी के नमूने की बुलंद खानी कहते हैं, यानी कि यही चीज है कि जब आवाज के साथ हम पढ़ते हैं तो उसे ही बुलंद खानी कहते हैं। उसके बाद क्या दूसरी जानिब क्या है, खामोश मुताला में बगैर किसी आवाज के सिर्फ नजरों से पढ़ाया जाता है। इसका मकसद तफहीम और लुत्फ अंदोजी होता है, ठीक है। यानी बगैर किसी आवाज के जब हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, खामोश मुताला कहते हैं। जब आप अकेले पढ़ रहे होते हैं तो क्या करते हैं, खामोशी से पढ़ते हैं, न कि आवाज करके पढ़ते हैं। तो जब खामोशी से पढ़ते हैं, जब खुद में पढ़ते हैं और समझते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, खामोश मुताला। तो ये एक दूसरे के मुतजाद हैं, एक दूसरे की जिद है, ठीक है, एक दूसरे का उल्टा है। बुलंद खानी जोर से है, जबकि खामोश मुताला क्या है, धीरे है, बिल्कुल बगैर आवाज के पढ़ना खामोश मुताला कहलाता है, ठीक है। तो ये सब आसान टॉपिक है, लेकिन पूछा जा सकता है और पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से इसको पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या होगा, टेस्ट दिया जाएगा, जिसमें आपको कम से कम 50 सवालात दिए जाएंगे और उन सवालात को हल करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कहां से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसमें क्या है, मुताला की तदरीस। अगला टॉपिक हमारा क्या है, मुताला की तदरीस। इसमें क्या कहा गया है देखते हैं। इसमें कहा गया है कि पढ़ने को एक शौक की शक्ल में फ़रोग़ दिए जाने की ज़रूरत है। बच्चों को पढ़ने के लिए इजाफी मवाद को वक्त की बर्बादी के बजाय एक वसीला के तौर पर देखा जाना चाहिए। पढ़ने के अमल में रटने या उसकी मैकेनिकी बनाए के बजाय माना और तफहीम पर तवज्जो दिए जाने की ज़रूरत है। पढ़ना तभी दिलचस्प हो सकता है जबकि बच्चे को पढ़ी गई बात समझ में आती हो। पढ़ना महज अलामात की डिकोडिंग तक महदूद न हो। याद रखिए, पढ़ने का मतलब अलामात की डिकोडिंग करना नहीं, बल्कि असल मकसद तफहीम और अखज़ माना है, और माना अखज़ करना है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि बच्चे जब पढ़ते हैं तो इसको क्या, अगर एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़े जा रहे हैं तो उसको एक क्या करना चाहिए, मौका के तौर पर, एक वसीला के तौर पर देखना चाहिए एक मुअल्लिम को, और बच्चे को पढ़ने के लिए मुहर्रिक करना चाहिए, यानी मोटिवेट करते रहना चाहिए। बच्चों को रटवाने से ज्यादा उसको समझने पर जोर देना चाहिए कि बच्चे अगर रट रहे हैं तो बिल्कुल नहीं, बल्कि बच्चों को क्या करना चाहिए, समझ पैदा करना चाहिए, ताकि वो किसी भी चीज को खुद से पढ़ करके उसे समझ सके, ठीक है। तो ये चीज कहा गया है। कहने का ये मतलब है कि सिर्फ डिकोडिंग करना, यानी कि ये जो लफ्ज लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ है, सिर्फ इसको सरसरी नज़र से पढ़ देना ही मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका मकसद ये भी होना चाहिए कि बच्चे को ये चीज़ जो इबारत लिखी हुई है वो समझ में आया या नहीं, और इसे पढ़ करके समझने की सलाहियत पैदा हुई या नहीं। तो एक मुअल्लिम को ये करना चाहिए कि इस तरह से उसके अंदर सलाहियत पैदा करे कि वो उन इबारत को खुद पढ़ करके समझ जाए, ठीक है। ये चीज़ छोटी छोटी बात कही गई है कि अल्फ़ाबेट की जब शुरुआत होती है, यानी हुरूफ़ तहज्जी की शुरुआत करते हैं, तो बच्चों को क्या करते हैं, हम रटाते हैं, अलिफ बे ते, और इसमें वक्त नहीं, बहुत सारा वक्त गुजर जाता है। लेकिन मुख्तलिफ तरह के बच्चे होते हैं, जो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो रट लेते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो रट भी नहीं पाते हैं,
تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ایک ایسا طریقہ استعمال کرنا چاہیے جس کی مدد سے بچے جلدی سے اسے سیکھ لیں. جیسے تصویر کے ذریعے الف سے اگر ہم کسی تصویر کو دکھاتے ہیں، جیسے ابھی کی کتاب میں آپ دیکھیں گے تو الف سے انار دیا ہوتا ہے، تو بچے کیا کرتے ہیں، الف سے انار، الف نہیں یاد کرتے بلکہ اس کے ذہن میں انار کی تصویر آ جاتی ہے اور اس کی مدد سے وہ الف کو سیکھ لیتے ہیں. بعد میں آپ پوچھیں گے کیا ہے تو وہ ایک ساتھ بولے گا الف سے انار. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہمیں بچوں کو سکھانا چاہیے تاکہ وہ اپنی دلچسپی کے مطابق سیکھ سکے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں ہیں، اس میں آپ پڑھ لیجئے گا. اب کیا ہے، پڑھنے کو فروغ دینے کے طریقے، یعنی مطالعہ ہم کیسے، مطالعہ کرنے کو کیسے ہم فروغ دیں کہ بچہ مطالعہ کرے، خود سے پڑھ سکے. تو اس میں کیا ہے، کمرہ جماعت میں پرنٹ کا ماحول قائم کرے، مختلف آوازوں کی چارٹ لگائیں. ٹھیک ہے، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں پرائمری سطح کی، تو اس میں کیا کریں گے، ہم مختلف طرح کی چارٹ کو لگائیں گے. بچے سے کیا کریں گے، بار بار اس میں سے کچھ تصویریں دکھا کر کے پوچھیں گے کہ کیا ہے یہ. تو بچہ کیا بتائے گا، اس تصویر کے بارے میں بتائے گا، وہاں جو لکھا ہوا ہوگا وہ پڑھنے کی کوشش کرے گا. اس کے ذریعے سے ہم بچے کو پڑھنا سکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، معلم کیا کرے، طلبہ کے تجربات کو تحریر کر لے. کیا کرے، طلبہ کے تجربات کو، اگر مان لیجئے کہ کوئی بچہ ہے، اس سے ہم کیا کرتے ہیں، کچھ بات پوچھتے ہیں، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں اور پھر انہیں کیا کرتے ہیں، جماعت میں پڑھ کر کے سناتے ہیں. تو کیا ہوگا، اس سے بھی بچوں کو فروغ ہوگا، بچوں کے کیا ہوگا، پڑھنے کا فروغ ہوگا، مطالعہ کو فروغ دینے میں مدد ملے گا. پڑھنا مقصد اور چیلنج سے بھرپور ہو. بچے کو کیا کرنا چاہیے کہ پڑھنا سکھانے کے لیے صرف پڑھنا ایک سرسری نظر نہیں ہو، بلکہ پڑھنے کے بعد ایک چیلنج ملے اس کو، تاکہ وہ اچھے سے پڑھنا سیکھ سکے. پڑھنا بچے کے گرد و پیش سے تعلق رکھتا ہو، اس سے دلچسپی بنتی ہے کہ اگر آس پاس کی چیزوں سے جوڑ کر کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے تو بچے پڑھنے میں دلچسپی لیتے ہیں اور پھر وہ یہ مدد ہوتی ہے اس کے پڑھنے میں. اب کیا ہے، کمرہ جماعت میں ایک پڑھنے کا گوشہ ہو جہاں ادب اطفال کے منتخب اچھے کہانیاں بچوں کو پڑھنے کے لیے دستیاب ہو. بچوں کو کتاب اٹھانے اور پڑھنے کی پوری آزادی ہو. اسکول میں یا مدرسے میں ایک ایسا بھی کمرہ ہونا چاہیے جہاں مختلف طرح کی کتابیں ہوں، کہانی کی کتاب ہو، اس طرح سے اور بھی کتابیں ہوں، جہاں بچے جا کر کتاب کو اٹھائے، اپنی مرضی سے جس کتاب کو چاہے اٹھائے اور وہ پڑھ کر کے پھر رکھ دے. اس چیز کی آزادی ہونی چاہیے. تو یہ تھا ہمارا کلاس، اور آج کے کلاس میں ہم نے پڑھنے کے بارے میں دیکھا، پڑھنے سے متعلق ہم نے دیکھا، یعنی کہ 4 مہارتوں میں سے 3 مہارت ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، لسننگ، اسپیکنگ اور ریڈنگ. اب ہمارا آخری مہارت جو ہے رائٹنگ، اسے ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے. LSRW میں سے ایک صرف W بچا ہے. تو یہ چیز ہے، ہمیں امید ہے کہ ان تینوں کلاس میں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے وہ ہمیں آپ بتا دیجئے تاکہ میں آپ کے سوال کا جواب دے سکوں. اور اگر اس PDF کے لیے، اگر یہ PDF آپ کو چاہیے، یا پھر آپ اس کلاس کا، ہر کلاس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے، وہ بھی آن لائن ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اس ٹیسٹ میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو پیڈ گروپ میں جڑ جائیے، اور اس کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کر لیجئے 8709422733 پر، تاکہ آپ جلد ہی گروپ میں جڑ سکیں. اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، اس کے علاوہ ویڈیو کو تو لائک کر ہی دیجئے آپ. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلی کلاس میں. اللہ حافظ.